क्यों सोचा यार, व्हाई डिड यू कम टू द नेवी? तू तो बनिया है, धंधा बिजनेस बिल्कुल. सो व्हाई नेवी? So you're right. I mean, the business was there in the blood because हमारा ट्रेडिशनल फैमिली में अगर अपन देखें तो एवरी बनिया मोस्टली आइदर इज अ सीए और इज अ बिजनेसमैन. आई रिमेंबर इन माई इनिशियल डेज ऑफ स्टडीज़ व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, तब से मैंने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था. एंड फॉर गुड 5 years आई यूज्ड टू गो विद हिम, यू नो, टू हिज शॉप आफ्टर माई स्कूल time. And nobody even imagined that, you know, my father will ever allow me to study also, because he was handling the shop alone, and I was the one looking after, you know, whenever he was not available in station. But suddenly, you know, in 11th standard I told him कि I want to, you know, opt for science, and मेरे को बंसल classes join करना है. And surprisingly he gave the approval also, just in one go. So that's how the studies came into my life कि okay, now I have a goal. Science ले तो लिया तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी. So completed my 11th and 12th, went to Bansal classes, and the aim was कि अपने को IIT ही जाना है. Studied for it, you know, worked very hard for it. फिर बंसल मतलब क्या, कोटा फैक्ट्री बंसल? हाँ, कोटा फैक्ट्री बंसल. I wanted to go to Kota, but my parents denied that. They said कि नहीं, you have to study in Jaipur only. So in 11th standard I was in Jaipur, but 12th standard मैंने जिद पकड़ लिया कि नहीं पापा, पढ़ाई नहीं हो रही जयपुर में, आप दुकान बुला दो और थोड़े दिनों में कि आजा दुकान आजा. तो ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा. So 12th में I went to Kota, but there I was, you know, rejected by all the schools. They said कि 12th में हम एडमिशन नहीं लेंगे. So फिर बंसल क्लासेस में एडमिशन लेने का there was no point. I had to come back to Jaipur. But एक शर्त थी कि मैं घर पे नहीं रहूँगा, मैं बाहर रहूँगा, अपना सेल्फ स्टडी करूँगा. घर पे रहूँगा तो आप मुझे दुकान बुला लोगे. So I had to stay outside for 1 year. Being in Jaipur, being in Bansal classes Jaipur, I stayed outside, studied. But मतलब whatever you say, I was not able to crack IIT, and I didn't appear for any other examination, only IIT and AIEEE. So it was a setback क्योंकि एडमिशन अब हो नहीं रहा था कहीं पे भी, और IIT अपने को जाना था, IIT में क्लियर नहीं हो पाए थे. So I opted for a repeat batch of Bansal classes. So I went there for 3-4 days initially, and वहाँ से रियलाइज़ हो गया कि भैया रिपीट तो अपने से नहीं हो सकता, आप कहीं पे भी एडमिशन ले लो, जहाँ इच्छा हो वहीं पे ले लो. Thankfully things were in my favor, and there was a third counseling going on for AIEEE, and I got an admission in NIT Jaipur. I got a civil engineering branch, and for a good 4 years I was there in NIT Jaipur, completed my BTech. In my final year, I was the placement coordinator in NIT, and I was interacting with the Indian naval officers who were supposed to come to campus for the UES entry scheme. So I had no idea what UES entry scheme is, or you know, I only had an idea कि Indian Navy is coming and they'll be recruiting few of the students from there for maybe future courses, or maybe the directly induct in Indian Navy. So I went to the hotel in the morning when they came, and I met the officers who had come. I was fascinated to see them in uniform, and जो बाहर उनका आर्मर्ड व्हीकल खड़ा हुआ था वो भी बहुत हाई-फाई था, बहुत अच्छा लग रहा था. They asked me, okay, we'll meet you in the, you know, during the interview. I said, sir, I am not appearing for the interview. They said, why? So my answer was कि सर, my family will never allow me. मुझे पढ़ाई करा दी, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. अब ये फौज वौज तो मुझे पता है कि कोई चांस नहीं है, मेरा भी कोई इंटरेस्ट भी नहीं था और कोई इंक्लिनेशन भी नहीं था. But then he said कि नहीं यार, you should come for the interview at least and sit for the group discussion. I said ठीक है, then sir, in that case I'll have to go back and get my file. वो घर पे ही थी, मैं लेकर नहीं आया था. He said ठीक है, you go home, we'll directly reach your campus and you join us there. So I went home, came with my, you know, file. Group discussion happened. I remember the topic was narcotics. मेरे को ABCD नहीं पता नारकोटिक्स की, कुछ पता ही नहीं था भाई. बट फिर भी कुछ कुछ बोल दिया बिकॉज बोलना आता था. एंड ग्रुप डिस्कशन क्लियर हो गया. उसके बाद इंटरव्यू होना था. इंटरव्यू में दोनों ऑफिसर से पहले इंटरेक्शन तो हो ही चुका था, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल तो था कि ठीक है, नॉर्मल बात तो कर ही लेंगे. उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, बस सिर्फ फैमिली के बारे में पूछा, बिजनेस के बारे में पूछा, पापा क्या करते हैं, और इंटरव्यू ओवर. आई डोंट नो उनको क्या पसंद आया क्या नहीं, बट माई नेम वॉज देयर इन द फाइनल लिस्ट ऑफ, you know, 13 students who were selected from my college to go and appear for the SSB. SSB. कहाँ दिया SSB? SSB was SSB Bhopal. Okay. 33 SSB. Now the date given to us was November. I don't exactly remember, but 3rd week or 4th week of November was given to us कि you will have to come for the SSB interview. Now during the same duration we had our final 7th semester exams. So I had written a mail to the concerned, you know, department that
sir, we may not be able to come for the SSB because we have our final exams scheduled for the particular duration. So kindly allot us a different date. And I spoke to them on the phone also. They said, ki, yaar, it completely depends whether you will get a second chance or not, because we are also not sure. And we didn't get any reply. But few of my course mates, out of 30, I think 7 or 8, they got a letter that you have to appear for the SSB on so and so date, and the date was 31st December, because it was a new year, so I remember that date. So you were supposed to report on 31st. This was 2010. 2010. Correct. Now the thing is, only 7-8 students got that letter, and rest 3-4 didn't get, and I was one of them. I didn't get a letter. So we were again confused whether to go or not go. Then I spoke to one of my senior who went for आर्मी का SSB कि क्या करना चाहिए बॉस, लेटर तो सबके पास नहीं आया है. ही सेड कि यार एक काम करो, लेटर सबके पास नहीं आया ऐसा पॉसिबल है बिकॉज वो गवर्नमेंट स्पीड पोस्ट से आता है, तो समटाइम इट गेट्स स्टक ऑल्सो एंड डिले भी हो जाता है. सो यू जस्ट गो, अगर नाम नहीं हुआ तो भोपाल घूम के आ जाना, है ना. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. बट जैसे हमने जाने का प्लान किया, so if you recall, there used to be a famous Andolan which happened in Rajasthan, Gujjar Andolan, where the railway tracks were not operational. I remember Bhati was my classmate. Bhati was my roommate in academy. Correct. Gujju. So roads were blocked. Yeah. So there was no way we could reach Bhopal on 31st. And there were a lot of family members, not only my family members, even my course mates of college. They said कि यार मत भेजो बच्चों को वहाँ पे, कहीं फंस जाएंगे रास्ते में, कोई मतलब नहीं है. But as luck would have it, things were in our favor. वो 30th को गुज्जर आंदोलन was called off and we landed up in भोपाल. हम 13 जने थे. 13 में से आई थिंक हम लोग कुछ 6-7 जने ही गए थे. And we saw that our names were there in the list. हमें लेटर नहीं आया था, but still our name was there कि okay, these are the people coming for the SSB interview. It was specific SSC naval constructors. No, it was for all the UES. Yes. It was a UES direct college. Yes. तो सब कंजॉइन करके बुला लिया होगा. सब कंजॉइन करके बुला लिया था. एक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सीएनसी सब एक साथ ना. सब एक साथ थे. एंड हमारा जो बैच था वो 200 लोगों का बैच था. उससे पहले भी हमारा जो बैच जिसका एसएसबी हुआ था वो भी 200 लोगों का था. तो हम जिस दिन पहुंचे उस दिन ओवरलैप था. तो हमने उनसे पूछा प्रीवियस बैच से कि भाई मतलब क्या रहा फाइनली आपका सिलेक्शन वगैरह. दे सेड 0 एंड वी वर लाइक 0. Everybody से एक को भी नहीं सेलेक्ट किया. ये क्या मतलब व्हाट इज दिस प्रोसीजर. उनको लेना नहीं है तो फिर बुलाया किस लिए. अब हम में से कुछ लोग ऐसे थे जो लोग प्रिपेयर करके आए थे कि यार एसएसबी क्या होता है. वहाँ लोग डिस्कस कर रहे थे यार ये आयरन विराट क्या होता है, विक्रांत क्या होता है. एंड हम में से कुछ लोग थे जो यार बस ऐसे आ गए थे क्योंकि किसी ने बोला था यार जाओ वहाँ पे, यू जस्ट एंजॉय द एसएसबी. तो हम तो उसी माइंड सेट से आए थे. और यहाँ देख रहे हैं कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं कि विराट क्या है, विक्रांत क्या है. हमें तो ABCD भी नहीं पता नेवी की. वैसे ठीक है ना, एंजॉय करने के लिए आए, लेट्स एंजॉय द एसएसबी. ऐसे ही लोग रिकमेंड होते हैं. एग्जैक्टली. सो यू हैव टू गो विद द ओपन थॉट कि यार ठीक है, लेट्स एक्सपीरियंस दिस एसएसबी. ये मैंने भी मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद समझा है कि वी वर नॉट रिजिड कि यार नेवी ही ज्वाइन करना है, आर्म फोर्सेज ही ज्वाइन करना है. लोगों का जुनून होता है ना, अच्छी बात है, होना भी चाहिए. बट ऐसा नहीं था कि यार वही करना है बस. सो थिंग्स स्टार्टेड विद स्क्रीनिंग. First day, 148 people were, screened out and 52 were selected. So we were a total 52 who were screened in, and we stayed there for 5 days. We completed the entire SSB procedure, and out of 52, final conference mein there were 2 names. One was me and one was our coach mate Sahil Kapila. Yeah. Okay. So when the names were announced, we too were there and we were very happy. मतलब personally I got emotional also that time. So I called up my father then and there itself. वॉशरूम में जाके कि पापा सिलेक्शन हो गया, नाउ आ गया है, क्या करना है. उन्होंने बोला जयपुर आजा बात करते हैं. ठीक है जयपुर में बात करते हैं, बट मैं अभी और नहीं आऊँगा, 6 दिन और लगेंगे, मेडिकल्स वगैरह होने थे. सो वी वर वेरी हैप्पी. एंड वो फिर आपको चेस्ट नंबर मिलता है, प्लस का साइन मिलता है, वो जो प्राउड मोमेंट था, इट वाज अमेजिंग. मेडिकल स्टार्ट हुआ, वहाँ पे सब क्लियर हो गया. मतलब दो वी बोथ वर क्लियर, बट साहिल हैड सम हर्ट मर्मर एंड ही वाज टोल्ड कि ही विल हैव टू कम बैक मे बी आफ्टर अ मंथ और 2. लेटर ऑन दैट आल्सो गॉट क्लियर. सो वी वेंट बैक होम. That's how it started. and घर जाने के बाद ही कहानी खत्म नहीं हुई. बाय द वे देयर वर लॉट ऑफ सेटबैक्स. फैमिली ने तो मना किया ही किया कि जाना नहीं है, अपना ठीक है तुम जाके आ गए, एसएसबी तुमने क्लियर कर लिया.
I also had a job opportunity of a Maharatna company that time. It was a PSU, Naval Lignite Corporation LLC. They were offering around 10-11 lakhs in 2011, and the posting was also in Bikaner, which happens to be my again a native place. तो घर वाले और भी श्योर थे कि भैया अपने को तो PSU ज्वाइन करनी है, 10 लाख का पैकेज मिला है, बीकानेर में मिला है, और क्या चाहिए, जयपुर से 5 घंटे का रास्ता है, ये नेवी वगैरह अपने को ज्वाइन नहीं करना है. बट आई वॉज लाइक कि कुछ आउट ऑफ द वे करना है, हमेशा से दिमाग में फितूर था ये, कुछ अलग करना है. तो मैं अड़ गया कि मेरे को तो नेवी ज्वाइन करनी है, मैं तो जाऊँगा वहाँ पे, देखेंगे बाद में जो होगा देखा जाएगा. सो धीरे धीरे टाइम आता गया. अप्रैल 2011 की बात है. आई हैड अ सीवियर सेटबैक. आई हैड अ बैक इंजरी. पता नहीं क्या हुआ उस रात को. वी हैड अ फेयरवेल पार्टी हमारी कोर्समेट्स की, एंड मैं आके सो गया. मॉर्निंग में अराउंड 4 o'clock वॉशरूम जाने के लिए उठना था, उठ नहीं पाया, मतलब मैं खड़ा ही नहीं हो पाया लिटरली. तो आई कॉल्ड माई फादर एंड मदर. वो आए, मुँह लगाया, थोड़ा मालिश किया, बोला ठीक हो जाएगा. मॉर्निंग में सेम थिंग, 7:30 8 o'clock, उठ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ अपनी जगह से. सो इट टुक मी अराउंड 30 to 35 days. मेरा ट्रीटमेंट चला प्रॉपर, बहुत चीज़ें हुई उस दौरान. मेरे फाइनल एग्जाम्स थे 8 सेमेस्टर के, मेरा फाइनल प्रोजेक्ट था. बट माई कॉलेज वॉज वेरी फेवरेबल. मेरे HOD ने मेरे को बहुत फेवर किया, बोला यार मनीष तूने 7 सेमेस्टर कॉलेज को दिए हैं ना, विल टेक केयर ऑफ योर फाइनल एग्जाम्स एंड विल टेक केयर ऑफ योर प्रोजेक्ट. जो फाइनल भाई तो नेवी जा रहा है. नेवी भी जा रहा है, प्लस थिंग्स वर इंश्योर्ड. मतलब देयर वाज अ बेड फॉर मी इन द कॉलेज. लास्ट में मैं उस बेड पे सो के अपने एग्जाम्स लिखता था लिटरली ऐसे. एंड मेरा अकेले का प्रोजेक्ट इंटरव्यू लिया गया, जो कि किसी का कभी लिया नहीं गया होगा शायद. आई डोंट रिमेंबर कि मेरे एटलीस्ट ऊपर नीचे किसी का हुआ हो. तो थिंग्स वर क्लियर फ्रॉम कॉलेज ऑल्सो. ठीक है, सब कुछ हो गया. मैं जून 15 को पहली बार वापस शायद उठा था बेड से, थोड़ा चलने लायक भी हो गया था. मुझे इसलिए याद है वो डेट क्योंकि मेरे कज़न ब्रदर की शादी थी, एंड मैंने कहा मैं जाऊँगा शादी में, जो जाना है. सबने बोला जाना नहीं है, जा नहीं सकता है, जो भी है. मैंने कहा जा कैसे नहीं सकता, 28 तारीख को मेरे को रिपोर्ट करना है नेवल अकेडमी. लोग बोलते हैं यार तू खड़ा हुआ है 15 तारीख को, तेरे को अब भी अकेडमी का फितूर है, अभी भी अकेडमी में जाना है. तो जो अपना ऑफर लेटर आया था ना, इट वाज मेंशन कि यू हैव अ 15 days ऑफ टाइम, इफ़ यू वांट टू कम बैक यू कैन कम बैक. तो मैंने वो बार्गेन किया अपने घर वालों के साथ. देखो इसमें ही लिखा हुआ है 15 दिन, मेरे से नहीं होगा, 15 दिन वापस आ जाऊँगा, आप मेरे को 15 दिन के लिए भेज दो बस खाली. मैंने वहाँ से उनको मनाना शुरू किया और मान गए, और 15 दिन का बोल कर गया था. एंड वी कंप्लीट आवर ट्रेनिंग एंड कंप्लीट 10 साल बाद वापस गया तू तो. That's how the story about my Navy is all about. And this is very commendable because I remember you were in first enclosure in the cross country. I was the podium. You were the podium. Silver, yeah, second. So वो शायद मोटिवेशन ही था कुछ जो काम कर रहा था. मोटिवेशन क्या था कि यार जब खड़े हो गए अपन, भगवान ने अपने को खड़ा होने लायक कर दिया और अकेडमी भेज दिया है, तो किसी पर्पस से भेजा होगा. तो मैं जब उस दिन दौड़ रहा था ना क्रॉस कंट्री, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि जब मैं बेड पे था, उठ नहीं पा रहा था, खड़ा हो गया, अकेडमी आ गया, भाग भी रहा हूँ, तो क्यों ना आज कुछ ऐसा किया जाए कि यार अपन फर्स्ट एनक्लोजर में तो आए ही आए. एंड पोडियम में लेके गया, आंग्रे का नाम रोशन करके गया तू. Anyway, so yeah, guys, so we are from the same squadron. Yeah. And he's like he mentioned थोड़े दिन पहले जब हम ये शूट करने वाले थे, तो ये बोल रहा था यार 13 दिन उसी में सारे के सारे ही महारथी है. सबने कुछ ना कुछ अलग ही किया है लाइफ. Very true, very true. Our course is very dynamic. 13 दिन उसी.